पर खड़े होने के लिए दशकों की मेहनत की जाती है, और जब वो मेहनत रंग लाती है, फल लाती है, तो उस खुशी को शब्दों में बयान कर सकना असंभव है। नमस्कार दोस्तों, मीराबाई चानू या पीवी सिंधु ने जो हमारे देश के लिए मेडल जीते हैं, या आगे और जो भी एथलीट्स और खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल जीतेंगे, वो किसकी मेहनत की वजह से जीतेंगे? हमारी मेहनत की वजह से, अपनी खुद की मेहनत की वजह से, अपनी परिवार और कोचेस की मेहनत की वजह से, या फिर मोदी जी की मेहनत की वजह से? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपके आते ही जैसे बौछार हो रही है मेडल्स की, आपके आते ही जैसे बौछार हो रही है मेडल्स की। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया देख के तो ऐसा ही लग रहा है। अब मैडम ये कह रही हैं कि आप जैसे ही मंत्री बने, भारत के ऊपर मेडल्स की बरसात हो गई। 2020-21 के बजट में अनुमानित राशि रखी गई थी 2826 करोड़, लेकिन संशोधित राशि 1800 करोड़ की हो गई। 36% की कमी आ गई। लेकिन ये भाजपा के किसी भी मंत्री से ये नहीं कह पाई कि जैसे ही आप सरकार में आए हो, आपने जनता का खून चूस लिया है पेट्रोल, डीजल और गैस के जरिए। दोस्तों, ये ही नहीं, सरकार द्वारा एक वेबसाइट भी बनाई गई है खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए, जिसका नाम है चीयर फॉर इंडिया। अब आप जब इस चीयर फॉर इंडिया वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको सबसे पहले मोदी जी की तस्वीर मिलेगी, अकेले ही। अब इस वेबसाइट में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, किसी भी खिलाड़ी को शुभकामना भेजने के लिए, तो आपको उस खिलाड़ी को और उस खिलाड़ी के खेल को चुनना पड़ता है। अब आप जिस भी खिलाड़ी को शुभकामना भेजने के लिए चुनते हैं, तो एक बार फिर उनकी एक तस्वीर आ जाती है मोदी जी के साथ। इसके बाद आप जब शुभकामना देने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि आप 5 कोट्स में से किसी एक को चुनें। अब ये जो कोट्स हैं, ये भी मोदी जी के भाषणों से लिए गए हैं। अब आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाकी काम गोदी मीडिया कर ही रहा है। तो दोस्तों, हम थे नविका कुमार पे, और नविका कुमार थी उमर अब्दुल्ला के सामने। You told, show me the start. Where is the start? Show me one new investment that has come. Show me one positive development that has come. Everything that is being inaugurated right now, from roads to tunnels to powerhouses to hospitals to schools to colleges to universities, were all given in the previous government. Ghulam Nabi Azad as health minister gave the medical colleges. Dr. Manmohan Singh gave the central universities. Dr. Manmohan Singh gave the 4-lane highway between Jammu and Srinagar. The tunnel in Banihal, the tunnel in Nashri was started when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. The Zojila tunnel and its the predecessor, the Zedmore tunnel. Again, I was there when the foundation stone was laid during Dr. Manmohan Singh's government. Let me list out for you what we did, and then you list out what has been done over the last 2 years, and let's see where we are. I am telling you in terms of numbers. What do you want? I'll tell you here. I have numbers in front of me. We are 3rd in life expectancy compared to the rest of the country. UP is the lowest in the country. Okay? We are 7th in terms of the number of doctors available for the population. 7th in the country we were before 2019. You say we did nothing. I'm willing to accept that. Where did these doctors come from? Here. In poverty, Jammu and Kashmir is amongst the lowest states in the country in terms of poverty. Where did that come from? It's not a gift of the last 2 years. It's the last 70 plus years that you claim had no governance at all. In terms of infant mortality, we are 10th in the country. Again, you don't see that because all you can see is Article 370 and you believe Jammu and Kashmir has suffered on account of that. In terms of the Human Development Index, we rank higher than your very fancy states like Gujarat and Andhra Pradesh. And yet you claim Jammu and Kashmir got nothing, and the Muftis and the Abdullahs and the Congress did nothing. Argue with the numbers and tell me. अरे माँ चुदी पर ही बता रहे हो करे। चलिए, जिस तरीके से टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने इनकी बोलती बंद करी थी। Times Now has wonderful popcorn interviews with the Prime Minister and the Home Minister when you do interview them. All lollipop questions. The body language is not the body language you have today, which is cool, that's your right, that's your anchor. उसी तरीके से या उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से उमर अब्दुल्ला ने इनकी बोलती बंद कर दी। इनके पास जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, तो बस ये धीरे से मुस्कुरा देती हैं। Which is cool, that's your right, that's your anchor. I am telling you in terms of numbers.
आप जब भी संबित पात्रा या नविका कुमार को किसी भी आर्ग्यूमेंट में मुस्कुराते हुए देखें तो आप समझ जाएं कि उनके पास जवाब नहीं है। तो दोस्तों, ओलंपिक से ही जुड़ी एक और खबर है। ये खबर अंधभक्तों को थोड़ी ज्यादा चुभेगी जरूर। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। 3 अगस्त 2021 को सुबह सुबह इंडियन हॉकी टीम का ओलंपिक्स में सेमीफाइनल मैच था बेल्जियम के साथ। सभी बहुत उत्साहित थे, लेकिन अच्छी शुरुआत करने के बाद भारतीय टीम ये मैच हार गई अनफॉर्चुनेटली। अब भारतीय टीम ये मैच क्या हारी, बात बात पर श्रेय लेने वाले श्रेयजीवी मोदी जी को लोगों ने इसका भी क्रेडिट दे दिया। सुबह से लगभग आधे दिन तक हैशटैग पनौती टैग करता रहा और लोग ये बताते रहे कि किस तरीके से मोदी जी की पनौती यहाँ भी लग गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और भारतीय टीम ओलंपिक्स में सेमीफाइनल मैच हार गई। मोदी जी ने सुबह 7:35 पे ट्वीट किया, आई एम वॉचिंग द इंडिया वर्सेस बेल्जियम हॉकी मेन सेमीफाइनल एट टोक्यो 2020। प्राउड ऑफ आवर टीम एंड देयर स्किल्स, विशिंग देम द वेरी बेस्ट। 7:35 पे ये ट्वीट किया। उससे पहले तक भारतीय टीम आगे चल रही थी और इनके ट्वीट आने के बाद ही भारतीय टीम मैच हार गई। इसी को देखते हुए ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया, बंद कर दीजिए मालिक, अंतरिक्ष यान का क्या हश्र हुआ था याद है ना, अब इन खिलाड़ियों पर तो रहम कीजिए, भगवान के लिए बंद कर दीजिए प्लीज। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।